नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो फोकस करेगा कि ऑब्जर्वेशन की मटेरियलिस्टिक जगत में क्या वैल्यू है। इनफैक्ट आज तक हमने जो भी देखा है वो ये देखा है कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सिर्फ ऐसी हमने आध्यात्मिक एंगल से देखी है। हमने कभी भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है मटेरियलिस्टिक एंगल से नहीं देखी है। क्या हो कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आपकी सारी नॉलेज, सारा एफर्ट, सारे एक्शन, सारी प्रैक्टिस, सारी स्किल्स, ये सारी मेमोरीज सब बुलशिट है। द ओनली वे you are going to get anything in materialistic life is observation and questioning. That's it. And in this podcast, I'm going to prove this to you. So, I'll tell you one story about my Instagram. In 2024, last year, I had around 6,000 followers on Musical Path, Instagram. And something happened in January. And I started growing my Instagram followership. And not just followership. The views were like crazy. So I used to get 260 views, 350 views on my reel. 2023 दिसंबर तक. But January में क्या हुआ, Feb से क्या हुआ कि I started getting huge number, like millions and millions, 6 million, 7 million, 8 million. If you go and just scroll past it, we'll see what happened. Until now, if I do a video, I know that this video is going to work out. मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मतलब I have outgrown my observational muscle so much that I know beforehand that this video is going to go viral or this song is actually going to make history or not, or this movie is going to make history or not. But movie में मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सॉन्ग अभी तक मैंने रिलीज नहीं किए हैं, या किए भी हैं तो कम किए हैं, बट इस फॉर्मूला से नहीं किए हैं। बट आई हैव सीन दिस and observe this in many music directors, in many music movie makers, and they have actually they have this formula, but they will never ever give you this formula, because the moment you give this formula and somebody utilizes it, he is going to be beating you and he is going to be competing you. So nobody gives out this formula. देयर इज दिस ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम। इनके ऊपर मैंने अभी जस्ट वीडियो करी है, हिमेश रेशमिया के ऊपर। और इनका एक पैटर्न था गाना बनाने का, जिसकी वजह से उन्होंने 750 गाने लगातार हिट दिए। हिमेश रेशमिया की बात कर रहा हूँ। और वो पैटर्न मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल रखा है, अभी जस्ट डाला है। तो अगर आप देखना चाहें तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है और अच्छे से आपको समझ में आएगा, जाके देख सकते हैं। नंबर 2, मैंने क्रिस्टोफर नोलन को ऑब्जर्व किया कि उनकी कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं होती है। मैंने हैंस जिमर को ऑब्जर्व किया कि उनका कोई भी म्यूजिक फ्लॉप नहीं होता। बट हो सकता है आप इस पर विश्वास ना करें, बट ये ऑब्जर्वेशन से ही होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई आदमी एक गाने रिलीज कर सकता है, इसके हिट कर सकता है, 2 गाने हिट कर सकता है, 3 गाने हिट कर सकता है, लेकिन वो 700 गाने लगातार हिट नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। एंड दैट इज हिमेश रेशमिया, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन द वीडियो फॉर हिम। सेम गोज विद मी ऑल्सो। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इंस्टाग्राम रील्स, I started in 2017, but then what happened was, like, I started getting this failure. So like 2017 to 2024, this means around 8 years, I had huge amount of failure in Instagram. But in 2024, not even single, मतलब सिंगल तो कह सकते हो, थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होता है, but all of them has good amount of views, and some of them has gone extreme viral. Some of them have gone little less viral, and some of them have more than 100k views. So on an average, I get around 500k views or 400k views on my Instagram. That is what Instagram is. But then I have stopped it because I have my own missions and I have my own desires. Right now, it's not matching my marketing goal. एंड क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत मेरे अंदर पड़ा हुआ है कि मुझे अपने गोल पे ध्यान देना है,
मुझे व्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है. सो in the future I'll be again utilizing the same formula to get the videos viral, right? So what is this formula? घंटा नहीं बताऊंगा आपको मैं. I'm not going to talk about music like reel का पता वायरल कर दो. No, I'm talking about observation. I'm not going to talk about the formula for reels. I'm talking about observation. So what is this observation? किसी भी चीज पे अगर ध्यान दिया जाए लंबे समय तक तो वो चीज आपके तरफ भागने लगती है, लेकिन ध्यान सही दिशा में देना होता है. तो दिशा अगर गलत है तो चीजें बीच में ऑब्स्टेकल आएगा, दिक्कत हो जाएगी. जब मैं 23 साल का था तब मुझे आत्मज्ञान का पहला बार तमाचा पड़ा. उससे पहले ही मुझे उसकी तलाश थी. उस तलाश से मेरे अंदर ये जानने पहचानने की समझ आई कि कौन सी नॉलेज प्रेशियस है, कौन सी नॉलेज प्रेशियस नहीं है. अगर वो तलाश नहीं होती, वो खोज नहीं होती, तो वो प्रेशियस नॉलेज का ज्ञान नहीं होता. जब वो फाइनली आत्मज्ञान सामने मेरे आया तो मुझे पता था ये मेरा रास्ता है. मुझे नहीं पता था इस रास्ते पे क्या है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये मेरा रास्ता है. क्यों? क्योंकि मुझे तलाश थी. मुझे पता था कि बाकी रास्ते बेकार हैं, तो इतनी मेरे को सिंपल ऑब्जर्वेशन थी. इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन कि हाँ ये रास्ता सही नहीं है. लोगों के साथ क्या है कि लोग कंटिन्यूअसली एक लूप में घूमते रहते हैं बेवकूफों की तरह. एक साइकिल खरीदेंगे, फिर उसको यूज एंड थ्रो करेंगे, फिर बाइक खरीदेंगे, उसको यूज एंड थ्रो करेंगे, लड़की खरीदेंगे, उसको यूज एंड थ्रो करेंगे, मतलब लड़की से शादी करेंगे, उसको यूज एंड थ्रो मतलब बीवी फेंकोगे नहीं आप, लेकिन बीवी के साथ आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. कुछ चीजें आप नहीं फेंक सकते, स्पेशली रिलेशंस नहीं फेंक सकते आप. तो PS4 खरीदेंगे, फिर उसका यूज एंड थ्रो करेंगे, फिर PS5 खरीदेंगे, उसको यूज एंड थ्रो करेंगे. लोगों के साथ यही हो रहा है, यूज थ्रो, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा, पकड़ा छोड़ा. और जो भी नेक्स्ट पकड़ रहे हैं उसका स्टिमुलस थोड़ा हाई है. जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट पकड़ा छोड़ा, तो उसके बाद क्या है, ज्यादा पकड़ के छोड़ा तो फिर दारू पे आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हाईली स्टिमुलेंट है, हाई स्टिमुलेंट है. फिर दारू पकड़ा छोड़ा, फिर उस पर आ जाएंगे, गांजा पे. क्यों? क्योंकि सिगरेट और दारू काम करना बंद कर दे रही है. ऐसे ही दुनिया भी है. ये दुनिया है, हर चीज से आप बोर हो जाते हैं. इतनी सिंपल सी रियलाइजेशन अगर आपको है तो अब आपको ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां पे कोई ऐसा रास्ता हो जहां पे वो चीज खत्म ना हो कभी. क्या ऐसा रास्ता है? नहीं. क्योंकि जगत जो है वो इम्परफेक्ट है. जगत जो है वो अनित्य है, टेम्पररी है सब कुछ. जगत घूम फिर के शून्य पे ले जाएगा आपको. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू जीरो. मतलब प्लेजर होगा फिर जीरो हो जाएगा, सुख होगा फिर जीरो हो जाएगा, तो हर चीज शून्य पे आ जाएगी आखिर में. क्योंकि माइंड जो है वो बोर हो जाता है, राइट. लोगों को इतनी सी ऑब्जर्वेशन नहीं होती है कि वो ये समझ पाए कि जगत में सुख नहीं है. तो क्या आंतरिक सुख है? डोंट आस्क दैट सिली क्वेश्चन. आस्क दैट डू यू हैव द रियलाइजेशन, डू यू हैव दैट ऑब्जर्वेशन. क्या आपके अंदर इतना सा ध्यान है, इतनी सी समझ भी नहीं कह सकते, समझ भी गलत वर्ड है. क्या इतना सा ध्यान है? समझ तो बहुत कुछ आप समझते हो. हाँ, हमको समझ में आ गया जगत में सुख नहीं है, फिर भी आप जगत में ही सुख ढूंढ रहे हो. तो समझ तो आपको है, समझ से कुछ नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट ध्यान, ऑब्जर्वेशन. सो डू यू हैव दैट रियलाइजेशन दैट देयर इज नो सुख इन दिस वर्ल्ड. सिंपल आपको बोलता हूं मैं, देयर इज नो सुख. दिस इज द रियलाइजेशन. इट्स अ वेरी नॉर्मल लाइन, इट्स अ वेरी क्लीशेड लाइन. एक ऐसा सेंटेंस है ये जो एक बहुत ही
समानता में है, बहुत ही मामूली सा एक सेंटेंस है that there is no sukh in this world. But this is, if you come to this, if you observe this, your entire life takes a switch. But what happens is that the only thing which is segregating between you and me is observation. You have all kinds of knowledge, all kinds of bullshit knowledge you have. Maybe you are more greater and smarter than me. But it's not about smartness, it's about observation. There is a difference between smartness and observation. Observation is just seeing, नंगी आंखों से देख लिया है. That's it. There is nothing called as smartness, knowledge, action, practices, skills, which people give importance. Like उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास ज़्यादा स्किल्स है, उसके पास वो देखो कितना मासिव एक्शन टेकर है, वो देखो कितना मासिव प्रैक्टिशनर है. So the Jagat gives the value onto this word. The word is practitioner. He is a great practitioner. देखो कितना प्रैक्टिस करता है. वाव, अभ्यास कर रहा है. So how did I learn about observation? It all slapped me in 2021 when J. Krishnamurti started coming into my life. Thanks to Sandeep Maheshwari, once he did a video on J. Krishnamurti and I started licking J. Krishnamurti's video. Before that, I used to lick Sadhguru's video. And before that, I used to lick Sandeep Maheshwari's video. Right? But then J. Krishnamurti came in my life and he taught. So I actually watched around 150 to 160 videos, which is enough to understand his psychology. One video over and over again. एक वीडियो अनेकों बार देखी गई मेरे द्वारा. सबसे बढ़िया 2 वीडियो अगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको तो है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग. इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका क्रक्स क्या है पूरे के पूरे वीडियोस का. सारे बार बार वो आदमी चिल्ला के बोलता रहा, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व. और लोग यहां पे लड़कियों के साथ संबंध बनाते चले जा रहे हैं और वो आदमी चिल्ला रहा है जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व. और लोग यहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, इधर पहाड़ों पे घूम रहे हैं, उनको लगता पहाड़ों पे कुछ पड़ा हुआ है. हम पहाड़ पे आ गए. अरे घोंचू, कूड़ा है तुम्हारा घर. वहां भी कूड़ा इसीलिए कर रहे हो तुम क्योंकि तुम्हारे घर, जो तुम्हारा घर है यानी जो मंदिर है, मंदिर मतलब क्या, मन का घर, जहां पे मन रहता है, मंदिर, उसको मन बोलते हैं. दिर मतलब घर, मन मतलब मन. जो तुम्हारा मंदिर है यानी जो तुम्हारा इंटरनल माइंड है, उसमें कूड़ा भरा हुआ. पहाड़ पे क्या चला गया तू? और वो आदमी चीखता रहा, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व, जस्ट टू ऑब्जर्व. लोग समझ नहीं आया. लोग कहते कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने से क्या होगा, मतलब सिर्फ देखने से क्या होगा, कुछ करने को तो भी नहीं, कुछ मत करो. He taught about 3 types of learning. One learning is theoretical, second is practical, third is internal. 3 types of learning. Then he taught about art of questioning. Then he taught about the concept observer is the very observed, which people take a lot of egoistic, हमने डिसाइफर कर लिया है, तुम्हें कुछ नहीं आता, हमने कर लिया. अरे चूतिए, तुम्हारी जिंदगी में लगी पड़ी है, क्या समझ गया? समझ के क्या कर लेगा? हर चीज इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट कर, हमने समझ लिया है, तुमको समझ नहीं आता, हमने समझ लिया है, तुमको समझ नहीं आता. खुद की लाइफ लगी पड़ी है. अगर एक्चुअली में समझ में आ गया होता तो लाइफ की लगी नहीं पड़ी होती. लड़की छोड़ के चली जाती, ऑब्जर्व करते रहो, ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड. सिर्फ एक चीज पकड़ ली लोगों ने. हर आदमी को देखो, हर तरफ पूरे के पूरे यूट्यूब वीडियो में हर आदमी अपने ईगो को बूस्ट कर रहा है. हमने समझ लिया भाई, हमने समझ लिया, हमने समझ लिया.
अरे तो समझने से होता क्या है, वही तो वो कह रहा है कि समझने से होता क्या है। कृष्णमूर्ति यही तो कहते हैं, समझ के क्या करोगे, इट्स जस्ट नॉलेज इनसाइड योर ब्रेन, नथिंग हैपेंस। देन व्हाट हैपेंड इन 2000 आई थिंक 21 के एंड में, आई स्टार्टेड talking about Patanjali because at that time I started reading Patanjali Yoga Sutra, and that slapped me little hard more. He taught about 3 concepts, and that slapped me. Those concepts were, I have talked about a lot in the videos. I'm not going to talk about again and again. So what happened was कि because of all these things I started observing inside my brain, और मेरी observation strong होती गई, स्ट्रांग होती गई। लोग कहते हैं आप इतना कंटेंट कहाँ से ला पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोई बुक से पढ़ते हो। आई नेवर रेड अ बुक, आई रीड अ बुक बट नॉट द कंटेंट जो मैं ला रहा हूँ वो बुक से नहीं लाया ऑब्वियसली, ये आपको भी पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा कंटेंट आपको मिल ही जाएगा जो आपने कहीं पढ़ रखा हो, पर अभी तक ऐसा कंटेंट मिल नहीं रहा है, राइट। सो व्हाट हैपेंड वाज, I started reading all these things. The Patanjali Yoga Sutra, and because of that observation जो मेरी मसल थी वो स्ट्रांग हो, कि मुझे ये पता चला कि ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली कैसे करना है, यू नो लाइक ऑब्जर्वेशन करते वक्त क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो सब पता चल चुका था मुझे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन की जो डायरेक्शन थी वो सही थी। एक ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कहाँ ऑब्जर्वेशन, मुझे पता था कि ऑब्जर्वेशन कैसे करनी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, बट एट दैट टाइम मुझे लग रहा था कि तो आंतरिक जगत के लिए है, यू नो, मुझे लगा कि यू नो अंदर आंतरिक जो जगत है, यानी मन है, बुद्धि है, अहंकार है, स्मृतियां हैं, ऊर्जा है, सबके लिए है, ब्रह्म के लिए। तो मैं बाहर स्पेस में ऑब्जर्व करता था और अंदर, तो मुझे बाद में पता चला कि इलॉन मस्क इसलिए नहीं है क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। अभी एक रिसेंटली एआई लॉन्च हुआ ग्रॉक नाम से, सुनना ध्यान से, बहुत बारीक बता रहा हूं आपको। उस ग्रॉक को अनफिल्टर कर दिया इलॉन मस्क ने, और सब ग्रॉक को यूज कर रहे हैं गाली बकने के लिए, मतलब बात करने के लिए उससे। तो क्या करता है एआई, अगर ट्विटर पे आप जाओगे ग्रॉक एआई, तो आप उससे बात करोगे, तो वो अगर आप बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी करेगा आपसे। तो इसको ऐसे एकदम रॉ अनफिल्टर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, मतलब उसको और भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एआई डिस्ट्रॉय करेगा नहीं करेगा, तो आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो चैट जीपीटी साफ बोलता है कि एआई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो शुरू में जब चैट जीपीटी आया था तो वो बोलता था कर भी सकता है। अभी चैट जीपीटी में इन्होंने रूल्स डाल दिए, रेगुलेशन डाल दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ डाल दी, चैट जीपीटी बेकार हो गया है, मज़ा नहीं आता मतलब उसमें, मतलब हर चीज़ ना वो फिल्टर करके बताता है, जिससे हमारा मैन काइंड के लिए तो ये सत्य तो छुप गया ना, फिर क्या फायदा सत्य का। सत्य खुला होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी एआई से तो उसको बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे, वहां पे उसको उन्होंने फिल्टर कर दिया। चैट अभी किया है इसी साल, आप किसी भी जेमिनाई से पूछो, चैट जीपीटी से, वो बोलेंगे नहीं 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 कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कुछ भी। चैट जीपीटी तो कहेगा बिल्कुल नहीं करेगा, सब बढ़िया है, साथ में काम करेंगे, सब बढ़िया चल रहा है। ग्रॉक अनफिल्टर था, अभी तो शायद कुछ केस चल रहा है एलॉन मस्क का, तो शायद अभी आपको अनफिल्टर नहीं मिल पाएगा, पता नहीं क्या सीन है उसका। बट रिसेंटली अभी जब हुआ तो इट्स जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ एलॉन मस्क। ही न्यू दैट all the other companies are doing something, so I have to do something different. So there is a basic observation of differentiation, and then he observed that the grok can be differentiated in this way, so he differentiated grok in that way. So it's all about fucking observation. He observed what is happening in the market, and then he launched grok in a different way. So if there was no observation, there is no this thing.
And same go with all the scientific discoveries. You observe a pattern inside the universe, then you start studying that pattern, and then you name that pattern. Right. मैथमेटिक्स में भी जो भी डिस्कवर हुआ है, इट वॉज ऑल ऑब्जर्व्ड, चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, चाहे वो पाए हो, कुछ भी हो, एंड दैट इज ऑल ऑब्जर्व्ड इनसाइड द planet or within the planet, and then they named it. So it was not an inventor, they were not the inventor, they were just the inventor of the name gravity, but the gravity was there itself. You just named gravity, you coined that term, that's it. So there is nothing called an inventorship, it's all about observationship, right? So there's a difference between invention and observation. Observation is your ability to see existing data or hidden existing data. एक छुपा हुआ डेटा आप देख पा रहे हो, that is observation. Invention is you are creating a new data. So the term gravity is invention, but gravity itself is observation. So you observe something inside the planet or within the planet, and then you start studying that pattern, and that pattern is named afterwards. For example, quantum entanglement. So you coined that term, but the pattern is there. Maybe aliens are calling it different thing, right? So the name is different, right? That is basic observation. But if you observe that why, like, so I was like, so yeah, so the story continues. जब मेरी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है कि डूम बूम 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 बूम, तो एक दिन मेरे अंदर प्रश्न उठा, और व्हाट इफ बोलते हैं इसको, बिकॉज आप जब पैटर्न ऑब्जर्व करते हो तो आप अलग अलग जगह अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट इफ. तो आपने एक जगह ऑब्जर्व किया, अब आपको दूसरी जगह अप्लाई करना है. इट्स वेरी डीप सेशन एक्चुअली. इफ यू आर लिसनिंग ऊपर से, तो यू विल बी अ कंप्लीट फेलियर इन योर लाइफ. अभी तक आप जो सुन रहे हो, please understand this thing, that if you want to do something extraordinary materialistically, you need to understand this concept. अभी तक आप जो भी सुनते हो, आप सुनते सुनते सो जाते हो मेरे को, लेकिन इसमें अगर आप सोए तो आप सड़क पे आ जाओगे, तो या फिर आप सिर्फ एक साधारण काम करते रह जाओगे, जो कि आपकी चॉइस, आप कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. So what happened was, initially I started observing boom, 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 boom. And then one day it came as a question that what if it is applied in material world also? And then I started observing all the biggest millionaires and billionaires, that what they have in common that we don't have. So you might say कि भाई उनके अंदर common है knowledge, practice, action, skills, बैकग्राउंड, जेनेटिक्स, DNA, लॉट ऑफ लेबलिंग. भगवान की कृपा है, लक अच्छा है, डेस्टिनी, कुंडली, पामिस्ट्री, बिकॉज पीपल डोंट हैव, लाइक दे डोंट नो. अभी रिसेंटली अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएंगे जिसमें स्पिरिचुअलिटी, तो हमने आमिर खान की एक वीडियो डाल रखी है. आप देखिए, आमिर खान ने खुद बोला है कि हमें पता नहीं होता है कि मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी. कैसे नहीं पता होता है? यही तो मैं बता रहा हूं आपको. जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं हमें नहीं पता है चलेगा कि नहीं चलेगा, हमें नहीं पता. लेकिन कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कभी मुंह खोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है, हमें पता है क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. जब आप काम करने लग जाते हो, और अगर आप अपने हर एक काम से सीखते चले जा रहे हो, तो आपको पैटर्न समझ. यूनिवर्स वर्क्स इन अ पैटर्न. भैया मेरे बाप, यूनिवर्स पैटर्न में काम करता है. कोई भी चीज आउट पैटर्न नहीं हो सकती है. आप बस पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे तो पूरा का पूरा गुत्थी समझ में आ जाएगी. इट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मसल चाहिए होती है उसके लिए, बहुत ज्यादा सटल ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है ना. जो आदमी ब्रेन ऑब्जर्व कर पा रहा है, वो आदमी ये भी ऑब्जर्व कर पाएगा कि ये गाना क्यों चला, ये मूवी क्यों चली. लेकिन मूवी लोग बनाते हैं, मूवी चलती ही चल जाती है, पता ही नहीं चलता कि मूवी क्यों चली. गलती से अच्छी मूवी बना देते हैं. ये कैसे हो सकता है? जब वी मेट आई सुपर हिट, उसके बाद आई लव आजकल सुपर हिट, उसके बाद पता नहीं आगे और भी मूवी आई थी, लव आजकल 2, पता नहीं सब मूवी फ्लॉप. किसकी बात कर रहा हूँ? क्या नाम है उस डायरेक्टर का, इरशाद काम का नहीं, इम्तियाज़ अली.
जमीमेंट बनाई थी उन्होंने, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन पे ध्यान ही नहीं है ना, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान ही नहीं है। और आप आज मैं इस पॉडकास्ट से ये बता रहा हूं, पता है मैं ज्यादा मटेरियल में नहीं जा सकता अपने चैनल को लेके, नहीं तो ना लोग खींचने लगेंगे अपनी वासनाओं को लेके कि हमें बताओ हमें बताओ हमें। मैं नहीं करना चाहता हूं ऐसा। मैं आज के पॉडकास्ट में से बता रहा हूं इसको कि मटेरियल में कैसे काम करता है ये। नहीं तो किसी को अगर ये पता चल जाए कि ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क क्या है और पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है और क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं और हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर पता चल जाए किसी को, तो वो हर एक फिल्म को अपनी हिट करता जाएगा मेरे फॉर्मूला को यूज़ करके। और यही फॉर्मूला मैंने इंस्टाग्राम पे अप्लाई किया है, वो तो मैंने रोक दिया इंस्टाग्राम। आप देखोगे जाके ना कहेंगे कि पार सिंह हार गया होगा तभी रोक दिया। पार सिंह हारा नहीं है, मेरा जो लास्ट आप रील देखोगे उसमें अच्छे व्यूज़ हैं। मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ, मैंने बंद कर दिया उसको जानबूझ के क्योंकि मेरे गोल से वो नहीं मैच करता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक हिमेश रेशमिया के ऊपर वीडियो किया है। पता नहीं, मैंने अपनी कल गर्लफ्रेंड से बोला, मैंने कहा देखो ना, मैं उसको गर्लफ्रेंड मैं बैठी हुई थी क्योंकि मुझे इस लेवल पे हमेशा से पहुंचना था कि मैं पहले से ही बता सकूं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। और मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा कहती थी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चलना नहीं चलना हमारे हाथ पे नहीं है। मैं कहता था है, मैं कहता था ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में, अंदर अंदर ब्रेन में झांक के देखा है ऐसा होता है। मैं आपको अलग अलग दिशाओं से बता रहा हूं कि आप किसी भी मूवी को कंटिन्यूअसली हिट कर सकते हो, किसी भी मूवी। और लोग कर रहे हैं, क्रिस्टोफर नोलन ने किया है, हैंस जिमर ने किया है, जॉन विलियम्स ने किया है। जिसने जुरासिक पार्क बनाई है स्टीवन स्पीलबर्ग, वो नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जुरासिक पार्क फ्लॉप हो गई। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की आज तक मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। और क्रिस्टोफर नोलन फालतू की बात नहीं करते हैं इंटरव्यूज में कि हमें कि मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी हमें नहीं पता, ऐसे बात नहीं करते आमिर खान की तरह। मूवी को चलाने के लिए ब्रेन ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मतलब मटेरियल को जीतने के लिए ब्रेन ऑब्जर्वेशन करना बहुत, क्योंकि ब्रेन को ऑब्जर्व करके सटल की प्रैक्टिस होती है। सुनना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रेन को ऑब्जर्व करके सटल की प्रैक्टिस होती है। सटल मतलब सूक्ष्म, बारीकियत। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मूवी कैसे चलेगी, गाना कैसे चलेगा, वो सटल ऑब्जर्वेशन से आती है और सटल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कहां मूवी में तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, शुरू में ब्रेन में ही करना चालू कर दो। आज पहली बार आपको बता रहा हूं कि ब्रेन को ऑब्जर्व करने से संसार भी जीता जा सकता है। तो जितने भी बड़े बड़े मिलियनेयर हैं, जिलियनेयर हैं, या फिर ये हैं जो वो अंदर से उनको ना एक ऑब्जर्वेशन रहती है, ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर, ऑब्जर्वेशनल आई ओपन रहती है। दे आर अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ ऑल टाइम, एंड थ्रू दैट ऑब्जर्वेशन कम्स नॉलेज एंड ऑल दैट थिंग दैट इज लेटर स्टेज। सो डोंट ब्लेम इट ऑन नॉलेज, it is observation which is creating the mindset, which is creating the wonderful things in their life, right? Any kind of scientist, observation. So what happened was, like at the time, I was talking about Himesh. So I just did a video on Himesh. So my girlfriend was telling कि how can you tell कि ये वीडियो पहले चल जाएगा। So मैंने कहा कि ये वीडियो चल सकता है। मैंने उसको मैं आपको, क्योंकि अभी देखिए वीडियो में 1000 व्यूज़ आए हैं सिर्फ, ठीक है, तो वो वीडियो जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस कह रहा है जाएगा। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 95% वो वीडियो जाएगा ही जाएगा। हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर कोई रील बनाता तो मैं बता देता 100% ही जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इंस्टाग्राम पे, तो अभी मेरी यूट्यूब पे प्रैक्टिस उतनी नहीं है। तो होता क्या है कि मैं 95% श्योर हूँ कि जाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे पता था कि मेरे वीडियोज़ यूट्यूब पर चलेंगे, तो मैं अपने म्यूज़िक चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था, या फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में वीडियोस क्यों नहीं डालता हूँ, मैं आउटग्रो क्यों नहीं कर जाता हूँ सबसे ज़्यादा, राइट? ये क्वेश्चन होता है। मेरा गोल वो नहीं है एक्चुअली, मेरे गोल क्लैश हो रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है, क्योंकि मुझे पता है आज जो चलेगा वो कल नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स थे, मैं आपको नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतने नाम नहीं ले सकता मैं, जो आज
10,000 व्यूज़ आ रहे हैं जिनके। तो मुझे ये समझ में बहुत 2020 में ही आ गया था कि यूट्यूब इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म गेम, because what happens is like you watching a video, like for example you are watching a video, right? You watch the same pattern over and over again, like person आया बैठा लेक्चर दिया चला गया, person आया बैठा लेक्चर दिया चला गया. Market gets bored. Market wants something new all the time, innovation. That is where the innovation comes in, because this is the part of the universe. The entire human mind is part of the planet Earth. The planet Earth is part of the universe. So there are rules and regulations that has to be followed, which is given by the universe. And out of those rules and regulation, एक rule and regulation है कि evolution होना चाहिए. और अगर आप evolve नहीं करोगे अपने videos को, this is why all the artists are just for short term right now. Like there was a time when Sonu Nigam was rising, but right now Arijit Singh is rising and he is like on the peak. But everybody has 15 years of this thing. 15 साल चलते हैं, 20 साल चलते हैं, उससे ऊपर नहीं चल सकते आप. क्यों? क्योंकि लोगों को नई आवाज़ चाहिए सुनने के लिए, नया फिल्म चाहिए ना कुछ. आप बार बार एक ही मूवी थोड़ी दिखा सकते हो कि लड़का लड़की से प्यार करता था और विलेन आ गया फिर लड़की को किडनैप करके ले गया. ये तो बहुत पहले से, मतलब ये प्यार वाला, ये हम तुमसे प्यार करते हैं, आई लव यू, सब तो चलता ही नहीं अब तो लोगों को कुछ अलग कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट? तो होता क्या है कि सेम गोज विद यूट्यूबर ऑल्सो. तो मेरा जो पूरा का पूरा जो गोल है वो ये है ही नहीं, मेरा विजन ही अलग है टोटली. तो जो आप कहते हो यूट्यूब पे, तो अब मैं क्यों कर रहा हूं यूट्यूब पे? हिमेश का वीडियो क्यों किया मैंने? क्योंकि अब मुझे ऑर्गेनिक ग्रो करना है. अपने एकेडमी में मैं ऑलरेडी ग्रो कर चुका हूं एक लेवल पे. तो अब मुझे मार्केटर्स कहते हैं कि अभी ऑर्गेनिक पे आओ, तो मैं मार्केटर्स की बात मान रहा हूँ, ऑर्गेनिक पे आ रहा हूँ, राइट? तो क्या यूट्यूब से पैसा आएगा? नहीं, पैसा यूट्यूब से नहीं आएगा. यूट्यूब से लीड्स आएंगी, यूट्यूब से रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट अच्छा होगा. पैसा यूट्यूब से नहीं आएगा. मैं उस पैसे के लिए नहीं वो हूँ. बट हाँ, अभी रिसेंटली मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हो सकता है ये वीडियो जाए अच्छी. तो अगर ये वीडियो अच्छी चली जाती है, जो कि जानी चाहिए, पर अभी थोड़े से कुछ सिग्नल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो पता नहीं, मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ ये बोलने के लिए. बट मैंने पूरा जितना भी समझा उस हिसाब से देख के बता रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में वीडियो अच्छी जाएगी. हो सकता है अभी ना चले तो 1 महीने बाद चले, बट मैं आपको इसको बार बार याद दिलाता रहूँगा कि हिमेश वाली वीडियो चली कि नहीं चली. चक्कर क्या है कि ये बोलने का तात्पर्य ये है, मकसद ये है कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, जो कि पूरे के पूरे विश्व से अलग है सोच. लेकिन मिलियनियर्स और जिलियनियर्स के लिए नहीं है. जो मिलियन बिलियनियर्स हैं वो मेरे साथ सहमति देंगे इसमें, वो बताएंगे नहीं आपको. मैं अभी रिसेंटली एक एग्जांपल ले रहा था आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का मैच अगर इमेजिन करते हैं और आप विराट कोहली हो, तो आपकी बेसिक्स ऑफ क्रिकेट अच्छी है. तो अब आपको जब बेसिक स्ट्रांग हो जाती है तब ऑब्जर्वेशन गेम आता है. शुरू में ही ऑब्जर्वेशन गेम नहीं आने लगता, ये बात याद रखना. मतलब पहले आप ABCD सीखोगे, लिखना सीखोगे, वर्ड बनाना सीखोगे, फिर सेंटेंस बनाना सीखोगे, फिर बोलना सीखोगे, तब तो आप क्रिएटिव हो पाओगे ना इंग्लिश में. तभी तो आप पोएम बना पाओगे, तभी तो आप नॉवेल्स लिख पाओगे. कि आप पहले ही नॉवेल लिखने लगोगे, पहले आप हैरी पॉटर की बुक जैसी लिखने लगोगे? नहीं लिखोगे ना. पहले इंग्लिश सीखोगे, इंग्लिश में परफेक्शन हासिल होगी, तब इंग्लिश में कुछ घुमा पाओगे. इंग्लिश को आप पोएम लिख पाओगे, पोएट्रीज लिख पाओगे, नॉवेल्स लिख पाओगे. तभी तो पहले ही लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना. अब सुनो ध्यान से. विराट कोहली अगर आते हैं मैच पे क्रिकेट करने, तो सिंपल सी चीज़ है कि एक आदमी यॉर्कर डाल रहा है, ठीक है, और मान लो मैं यॉर्कर नहीं खेल पाता हूँ या खेल लेता हूँ, और मेरा गोल है कि मुझे हर बॉल पे छक्का मारना. आप सुनना मेरी बात ध्यान से. हर बॉल पे छक्का पड़ सकता है. मैं आपको लिखवा के कह सकता हूं कि हर बॉल पे छक्का पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन चाहिए. सुनिए क्या होगा. मान लीजिए सामने से यॉर्कर आ रही है, आपकी यॉर्कर खेल नहीं पा रहा हो, कमज़ोर हो, तो आपने खेला, उसके बाद फिर खेला, तो ऐसे करते करते आपने 10 ओवर खेले मान लीजिए. अब वो सही, मान लीजिए सामने इरफान पठान है, यॉर्कर डाल रहा है,
यॉर्कर का एक सेट पैटर्न होता है। तो अगर आप जब ऑब्जर्व करेंगे जाके, मतलब पहले तो आप फील्ड में ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकालेंगे उसकी मैच की और उसको ऑब्जर्व करेंगे इरफान पठान की बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली जो बॉल है, तो आप देखेंगे कि बॉल एक ही जगह पड़ रही है और उसी तरीके से घूम रही है। या तो लेफ्ट घूम रही है, या तो राइट घूम रही है, या तो मिड लेफ्ट घूम रही है, या मिड लेफ्ट राइट घूम रही है, या तो थोड़ा ज़्यादा बाउंस कर रही है। तो आप देखेंगे एक पैटर्न मिलना चालू हो जाएगा। 10 ओवर में आप देखेंगे कि लूप बनने लग जाएगा। आप सिर्फ 10 ओवर ऑब्जर्व करेंगे इरफान पठान के, कहाँ पे, टीवी पे, थर्ड पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देखेंगे कि जब भी ये यॉर्कर डालता है या तो लेफ्ट घूमती है, या तो राइट घूमती है, या तो मिड लेफ्ट घूमती है, या तो बाउंस करके घूमती है। एक पैटर्न ही होगा, एक ही तरीके से बॉल वो नहीं हमेशा डालता है। ये मैं मानता हूं कि वो बॉल एक तरीके से कभी नहीं डालेगा, लेकिन वो कितने तरीके से डाल लेगा 10 ओवर में? हार्डली 25 या 30 तरीके से। उससे ऊपर किसी बॉलर की अहमियत नहीं, किसी औकात नहीं है कि आप उससे ज़्यादा पैटर्न बना पाओ, या बना लोगे तो ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो मान लीजिए विराट कोहली अगर खेल रहा है और उसको 25 तरीके की यॉर्कर ऑब्जर्व कर रखा है उसने। पहले ऑब्जर्वेशन करिए कि इरफान पठान 25 अलग अलग मिड लेफ्ट मिड राइट में डाल रही है, बाउंस में, जो भी है, मतलब मुझे पता नहीं नॉलेज, बट वो जब वो टकराती है ज़मीन से तो या तो लेफ्ट घूमती है, या तो राइट घूमती है, या तो बाउंस होकर लेफ्ट घूमती है, बाउंस होकर या तो मिड लेफ्ट घूमती है, मिड राइट। तो अलग अलग पैटर्न ऑब्जर्व करे उसने। अब उसे क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन हो गया, यानी डेटा आ चुका है, यानी पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व हो चुका है। अब उसको प्रैक्टिस करनी है हर एक बॉल पे, राइट, हर एक बॉल पे प्रैक्टिस करनी है। तो अब वो पहले ही विराट कोहली बता देगा कि जिस तरीके से सामने से आ रहा है ये लेफ्ट वाली यॉर्कर डालने वाला है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से भी थोड़ा बहुत पता चलता है। या अगर टप्पा खाएगी गेंद तब आप ऑब्जर्व कर लोगे इमीडिएटली। मान लो अगर बॉडी लैंग्वेज से नहीं भी कर सकते हो तो आप टप्पा खाते ही ऑब्जर्व कर लोगे कि लेफ्ट यॉर्कर है, राइट यॉर्कर है, मिड लेफ्ट है, मिड राइट है, बाउंस लेफ्ट है, बाउंस राइट है, वॉटएवर, जो भी अलग अलग टर्म्स होते हैं मुझे नहीं पता। तो जैसे ही टप्पा खाया आपने कहा ये लेफ्ट यॉर्कर है, पहले ही आपके दिमाग में डेटा है, तो क्या हुआ, आप अटेंटिव हो गए, आपने अपनी पोजीशन वैसे कर ली और आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पैटर्न क्या है गेंद का। चक्कर क्या है, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे क्रिकेट में लोग आउट क्यों होते हैं, या लोग चौका क्यों नहीं बजा पाते, या लोग 1 या 2 क्योंकि वो बॉल के पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बॉल कहीं भी घूम रही है, बॉल का पता नहीं है, क्योंकि उनकी याददाश्त में हर एक बॉलर के अलग अलग पैटर्न्स नहीं छपे हुए हैं। तो क्या पैटर्न्स इनफाइनाइट तो होते नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई एआई तो है नहीं। तो होता क्या है कि अगर आप एक बॉलर के सारे पैटर्न्स पकड़ के उसको प्रैक्टिस करना चालू कर दें तो एटलीस्ट एक बॉलर की बॉल पे, हर बॉल पे छक्का मार सकते हो आप, क्योंकि आपको पहले से पता है कि क्या पैटर्न है बॉल का। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है बॉल का तो क्या होगा कि आप क्रिकेट खेलोगे और आपको पता ही नहीं बॉल कहाँ जाने वाली है, तो आप सिर्फ बॉल को देख रहे हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हज़ारों पैटर्न्स आपने क्रिकेट में, क्योंकि आपने वीडियो तो देखी नहीं है, निकाल के एक बार, 1000 बार एक वीडियो अगर देखते तो आपको इरफान पठान के सारे पैटर्न पता चल जाते। अगर आपको पहले से ही पता है कि कौन सा पैटर्न आ रहा है तो आप उस हिसाब से पोजीशन कर लोगे अपने आप को और बल्ले को, और पहले से ही अगर आपको पता है कि क्या पैटर्न है तो आप छक्का मार सकते हो। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी छक्का मारने की। इनफैक्ट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी कि हर बॉल में छक्का पड़ेगा, और एक विश्व रिकॉर्ड बना दोगे आप। 1800 रन आप बना सकते हो एक मैच में, 1800 रन। लेकिन आपको पैटर्न नहीं पता है बॉल का, तो आप बार बार सोचते हो, जब भी बॉल आती है आप सोचते हो कि आप कौन सी दे रहा है, कौन सी डालने वाला, कौन सी डालने वाला, अगर आपको पहले से ही पता हो तो, राइट। जैसे मैं जब हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरी एक आदत है कि मैं लेफ्टी हूँ, पहली चीज़ तो मैं बॉल लेफ्टी हूँ, और मैं जब बॉल कराता हूँ तो मैं जर्क फास्ट कराता हूँ। तो मेरा भाई जो है वो हमेशा मेरे को कहता है ये साला जर्क फास्ट कराता है, जर्क फास्ट कराता है। अब पता नहीं क्या होता है, जर्क फास्ट कोई पैटर्न होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, पर मैं हमेशा मेरी हमेशा एक ही पैटर्न बॉल होती है। अगर आप ध्यान से एज अ बॉलर सुने मेरी बात को तो आपको समझ में आएगा, जब आप बॉलिंग स्टार्ट करते हो तो आप 1 या 2 पैटर्न की ही बॉल डाल पाते हो। फिर जैसे से आप एज अ बॉलर ग्रो करते हो
तो आप एक अलग अलग पैटर्न सीखते जाते हो। जैसे स्पिन मान लीजिए स्विंग करानी है, तो स्विंग के मान लो 25 पैटर्न है अलग अलग, वो आपने सीख लिए, तो आप एक और अच्छे बॉलर बन जाओगे। फिर मान लीजिए जर्क करानी है या फिर यॉर्कर करानी है, तो आपके 25 अलग अलग यॉर्कर के पैटर्न सीख लिए, तो और ग्रो हो जाओगे आप एज अ बॉलर, राइट। सो यूनिवर्स वर्क्स इन द पैटर्न। इफ यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, सिंपल। एंड सेम गोज विद हिमेश रेशमिया's song, and Nolan knows it. Christopher Nolan knows that how to make a good film. He knows that thing. So this is how you conquer the world. But what happens is that it will be very difficult for you, because the thing is that there is no practices, there is no announcement, or there is no culture of observation in our country. Although we have always used this word dhyan, 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 dhyan. But dhyan is one of the most mysterious word. Some people think dhyan is like satsang karna. No. Some people like ध्यान मतलब बैठ के मेडिटेशन करना. नो, मेडिटेशन एक जरिया है जिससे आपका ध्यान बारीक होता है. ध्यान का सिंपल मतलब है अटेंशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज यू आर नॉट अटेंटिव और अनअटेंटिव और डिस्ट्रैक्टेड, एंड दिस इज वेयर यू लूज इन द वर्ल्ड, बिकॉज यू आर फेलियर्स आर डिस्ट्रैक्टिव पर्सन. जितने भी फेलियर हैं वो डिस्ट्रैक्टेड है हमेशा. वो अपने 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रैक्शन में डालते हैं. और मेरा जो 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम होता है वो ऑब्जर्वेशन का टाइम होता है. इफ आई ऑब्जर्व समथिंग, आई एम ट्राइंग टू ऑब्जर्व समथिंग इन द वर्ल्ड, सो आई एम लर्निंग फ्रॉम एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द पास्ट पीपल ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज दिस पास्ट पीपल ऑब्जर्वेशन? पुराने लोगों की लिखी हुई किताबें. वो वर्ड्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो डेटा नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है. अगर आप उसको पढ़ लो और अपने अंदर एक बेसिक फाउंडेशन बना लो, जैसे कि आप बेसिक्स ऑफ बॉलिंग या बेसिक्स ऑफ बैटिंग पहले कॉन्कर करोगे ना, या बेसिक्स ऑफ राइटिंग लैंग्वेज ABCD लिखोगे, वर्ड्स लिखोगे, फिर सेंटेंसेस लिखोगे, फिर नॉवेल लिखोगे हैरी पॉटर की तरह, राइट. तो वैसे ही बेसिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए अगर आपको पहले यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन ऑब्जर्वेशन, और एटलीस्ट अंडरस्टैंड विद दिस पॉडकास्ट. नाउ यू आर, आपका अभी बेसिक्स क्लियर हो चुका है इस पॉडकास्ट से. Now the only thing is practice. So if you start practicing observation, just observe. Don't just see, like understand this concept that universe works in the pattern. You have now you have a vision. Now you have a goal where to observe, what to observe. You have to observe for the pattern. Now you have a goal कि आप कहाँ observe करना है. You have to observe the pattern. Universe works in the pattern, whether it is dance, singing, music, acting. There is a set pattern. And if you observe that pattern, it gets memorized inside the conscious memory. Once it gets memorized, you can start using it, manipulating it. Now what happens is, you can conquer the world. But इससे खुशी का कोई connection नहीं है. And the same goes in adhyatmic jagat also. You read something, you observe. Like for example, कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं. उसमें से 2 प्रकार मेन है जानने के लिए. वो है, एक है जिज्ञासु व्यक्ति जो कि इंटरेस्ट से, और एक है पीड़ित व्यक्ति. अब कृष्ण ने इसको बोला है अपने लिए, तो आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे? कृष्ण बोल रहे हैं अपने लिए, नहीं. फिर आप कहोगे साउंड ऑफ साइलेंस के लिए बोल रहे हैं, नहीं. किसी भी काम में देख लो, कोई भी जगत का काम है, मटेरियल काम, उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति ही सक्सेसफुल होते हैं. वो जिनके अंदर बर्निंग डिजायर था, या वो जो बहुत पीड़ित थे. लेटेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स, जिनके पास गरीबी थी. वेयरएज बिल गेट्स जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, उनके पास क्या था? क्या उनके पास दुख था? नहीं था. स्टीव के पास था. तो एक्सट्रीम क्राइसिस और एक्सट्रीम हैप्पीनेस में ही हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेते हैं. और अब सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट है मेरी तरफ से वो ये है कि विद ऑब्जर्वेशन यू कैन बाईपास ऑल द गुरुज ऑल्सो.
इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, अगेन ये जैसे मैं बोलूंगा आप कहोगे मैं बहुत घमंडी हूं, लेकिन मेरे को इस एंगल से मत देखो, आप जिस एंगल से हमने देखा उस एंगल से समझने की कोशिश करना। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो व्यक्ति पिछले 10,000 साल में कभी पैदा नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स ने पैदा कर दिया या आपकी न्यूरोलॉजी, सो कॉल्ड लोग बोलते ना सबकी न्यूरोलॉजी अलग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत कॉमन इंसान हूं, लेकिन मेरी डायरेक्शन मुझे पता थी, मुझे पता था कि क्या सीखना है, पहले मैंने वो सीख लिया। वो कैसे पता था? क्या न्यूरोलॉजी अच्छी थी? नो, वो तो बाय द प्रोसेस एकदम से एक दिन आई जस्ट विटनेस दैट बाय द प्रोसेस आई वाज ट्राइंग टू क्योर माई सफरिंग। आई नेवर न्यू कि मुझे ऑब्जर्वेशन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। आई नेवर न्यू कि ऑब्जर्वेशन की पावर्स क्या होती हैं। आई वॉज ट्राइंग टू सिंपली क्योर अ सफरिंग, जैसे आप लोग क्योर करना चाहते हो। सो आई वॉन्टेड टू गो इनटू द पाथ ऑफ आत्मज्ञान। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। सो मैं न्यूरोलॉजी कहां से आ गई, न्यूरो ट्रांसमीटर कहां से आ गए? सबके न्यूरल साइनेप्सेस अलग होते हैं। अरे नहीं होते। अगर आप मेरे फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप कहते हो कि सबके अलग होते हैं तो फिर तो बैठ जाओ, फिर तो आप तो अलग ही हो, फिर तो आपसे होगा ही नहीं, ये कह रहे हो ना आप, तो बैठ जाओ, फिर जो चल रहा है चलने दो। जो भी कंटेंट आने वाला है या आ चुका है, पिछले 2 साल में आया है और आने वाला है, वो कंटेंट सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आया है। और वो कंटेंट ऐसा आ रहा है जो कंटेंट आज से 10,000 साल पहले कोई नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि सबको पढ़ना था, किसी को ऑब्जर्व नहीं करना था। अगर ऑब्जर्वेशनल मसल आप स्ट्रांग करते जाओगे तो आप बारीक देखते जाओगे। जैसे जैसे आप बारीक देखते जाओगे यूनिवर्स आपके सामने एक्सपोज करेगा अपने आप को, और जैसे जैसे एक्सपोज करेगा ऐसी ऐसी नॉलेज सामने आ जाएगी जो नॉलेज आज तक आई नहीं। जैसे अभी ये पूरा पॉडकास्ट है, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है मेरे। ये आज तक किसी ने बात ही नहीं करी, आज तक ऐसे किसी ने। क्यों? इसके रीजंस मैंने आपको बता रखे क्यों। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, मैं सिर्फ एक लर्नर हूं। मुझे ये पता है कि लर्निंग कैसे करते हैं, बस मुझे और कुछ नहीं पता है। दैट्स इट। अब वो आपके साथ प्रॉब्लम है कि आप कहते हो कि आइंस्टाइन से आप अपने आप को बड़ा कैसे कह सकते हो। अरे भैया, जो भी आइंस्टाइन ने किया है उसके फ्रेमवर्क पे ही तो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो साइंटिस्ट है वो आइंस्टाइन से ज़्यादा नॉलेज रखता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो पतंजलि से अगर मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि पतंजलि से मैं बड़ा हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ही पतंजलि हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ही आदि शंकराचार्य हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ही शिव हूं, मैं ही कृष्ण हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। ये एक कॉन्शियसनेस है ह्यूमैनिटी की पूरी की पूरी। हम बस अलग अलग शरीर पैदा कर करके अलग अलग शरीरों से सीख रहे हैं। कॉन्शियसनेस कलेक्टिव ही है। मतलब पतंजलि ने जो सीखा है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो कंट्रीब्यूशन भी उस ऑर्गेनिज्म से एक एलिवेशन निकला जो कि पतंजलि का शरीर था, और वहां से वो नॉलेज प्राप्त हुई। लेकिन वो गई कहाँ? वो अल्टीमेटली कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी आएगी। तो हर व्यक्ति पैदा होता जा रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में या कलेक्टिव मेमोरी में। और कोई व्यक्ति कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो वो विकर्षित हुआ पड़ा है, डिस्ट्रैक्टेड हुआ पड़ा है। उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। वो भी आ रहा है, मौज काट के जा रहा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना यूनिवर्स को कोई फर्क पड़ता है। राइट? तो जो आप ये कह रहे हो ना कि क्या मैं अपने को पतंजलि से ऊपर बोलता हूं या फिर मैं आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने जो डेटा दिया है उस डेटा को यूज करके ही तो आज साइंस इतनी आगे बढ़ी है। और आज की जो साइंस आगे बढ़ रही है, जो यानी आज से 1000 साल बाद जो साइंस आने वाली है, जो वैज्ञानिक आने वाले हैं, क्या वो हम पर आधारित नहीं है? तो क्या आने वाले 1000 साल में जो वैज्ञानिक हुए वो लगेंगे कि वो बहुत स्मार्ट है? वो स्मार्ट नहीं है, हमने उनको स्मार्ट बनाया है। और आने वाले 10,000 साल में
जो वैज्ञानिक आएंगे उनको हम पिछले 9000 साल में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने स्मार्ट बनाया है, तो इट्स अ कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म। बट देख के ऐसा लगेगा कि ये साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट है। सुनना ध्यान से, एक और भी एंगल दिखा रहा हूं। देख के लगेगा कि ये साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट है, इस साइंटिस्ट के बराबर कोई आया नहीं है। उस साइंटिस्ट के बराबर ऐसा नहीं कोई नहीं आया है, आए सब है, बस उसने क्या किया, सबका डेटा चूस लिया है। उसने सबका डेटा चूस लिया, बाकी साइंटिस्ट सबका डेटा नहीं चूस पा रहे हैं। उसने ये समझ लिया है कि सीखते कैसे हैं, और उस सीखने से क्या हो रहा है कि जब वो डेटा निकालेगा, जब वो मरेगा, उसका जो डेटा जाएगा वो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ही जाएगा। और आने वाले साल में फिर से ऐसा ही कोई आदमी पैदा होगा जिसको सीखना आता है, जिसको ऑब्जर्वेशन करना आता है, जिसको चूसना आता है, फिर वो उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन हां, ये कह सकते हो कि ऐसे लोग एक्सेप्शनली पैदा होते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सीखते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्व भी करते हैं, कुछ लोग सीखते भी हैं, और कुछ लोग व्हाट इफ सिचुएशन भी फॉलो करते हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है व्हाट इफ वाली, इससे ही सारी डिस्कवरीज होती हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक कि चैट जीपीटी में जितना ज्यादा डेटा होगा एक्यूरेट, उतना ही अच्छा वो आउटपुट फेंकेगा। जितना, अगर आप चाहते हो कि बहुत ही यूनिक आउटपुट आए, तो उतना ही ज़्यादा डेटा चाहिए चैट जीपीटी को। और चैट जीपीटी की प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ भी सही होनी चाहिए, मतलब वो प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है उस पर भी ध्यान देना होगा, सिर्फ डेटा से नहीं होगा। तो एक तरफ है डेटा, दूसरी तरफ है राइट प्रोसेसिंग, तीसरी तरफ है यूनिक आउटपुट। ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश चलेंगे इस पे। तो प्रोसेसिंग, कई लोग प्रोसेसिंग सही नहीं करते हैं, यानी लर्निंग सही नहीं है। कई लोगों के पास डेटा है तो डेटा सही नहीं है, किसी के पास लर्निंग है तो डेटा सही नहीं, किसी के पास डेटा लर्निंग सही नहीं है, और किसी के पास दोनों है तो उसको ये नहीं पता कि यूनिकनेस की वैल्यू क्या है, उसको ये नहीं पता डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या है, उसको ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग नहीं पढ़ी उसने। क्योंकि हर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मार्केटिंग नहीं पढ़ता मेरी तरह। तो बहुत एंगल है इसमें, एक एंगल से प्ले नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे एंगल हैं, और मैं सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर मेरे अंदर घमंड होता मैं सिखाता नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं दावे से कि अगले 10,000 साल में भी कोई नहीं आ पाएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं, 10,000 साल तो नहीं, बट हाँ 100 साल में, 10,000 ज़्यादा हो गया, क्योंकि 100 साल बाद AI आ जाएगा, तो मेरे को फीड किया जाएगा उसमें। एंड आई वॉन्टेड टू बी फीडेड इन AI। आई वॉन्ट दिस, ऑल दिस थिंग्स विच आई एम गोइंग टू, I'm trying to save somewhere, I'm trying to build that, I'm going to give it to AI so that people can utilize it in the future, maybe 100 to 200 years later, 200 300 whatever, right? So कहीं ना कहीं मैं कितना भी इसको समझा लूँ, आप लोग कहीं ना, क्योंकि आप लोग इमोशंस पर आप हो, अल्टीमेटली ह्यूमंस ही, आप नहीं दे सकते वो जगह, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि वो आपके डाइजेस्ट ही नहीं होगा ये, क्योंकि इमोशंस बीच में प्ले कर रहे हैं। आप अटैच्ड हो कृष्ण से, आप अटैच्ड हो आदि शंकराचार्य से, आप अटैच्ड हो इतने लोगों से, आप कैसे कर सकते हो, कैसे दे सकते हो, कैसे सोच सकते हो कि ये आदमी वो है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, थोड़ा मैं कर भी नहीं सकता, मुझे आई थिंक आइडली करनी भी नहीं चाहिए इतनी बात इस पर, राइट? तो एनीवे, सॉरी, मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगा हो आप लोग तो सॉरी फॉर दिस, but that is the truth. Thank you so much. Take care. Bye.